Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So, today we are going to cover up the next 10 MCQs as planned. So, today's target is to complete MCQ number 71 to 80. Okay, so in case you have not seen the previous videos and the other videos which have been uploaded on the channel, please check out the description box below. I have mentioned the link in the description where you will find out the link of playlist where all the videos related to audit MCQ booklet as well as related to law MCQ booklet are mentioned. Also, I have given the link of other videos which might be useful to you. So please check out the description box below first. Okay, so let's start with the first MCQ for today, which is MCQ number 71. In case of PSU, so this is related to PSU audit chapter. In case of PSU, direct reporting engagement does not include. तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में कौन सा नहीं आता है? सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट्स. फर्स्ट इज़ द डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट एंड सेकंड वन इज़ द अटेस्टेशन एंगेजमेंट. वेन एवर आई से अटेस्टेशन एंगेजमेंट, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो ऑडिट आएगा दैट इज़ फाइनेंशियल ऑडिट्स. सो फाइनेंशियल ऑडिट इज़ always an attestation engagement. So that is why this option is totally incorrect. If we say that this is the direct reporting engagement, no, this is not the direct reporting engagement. So the correct option in this case would be C. This was very easy question, direct question tha. So the correct answer is C, because financial audits are the audit attestation engagements. Okay, let's move on to the next question, which is the audit committee shall or should consist of the following. तो audit committee की composition आपको पता ही होगी that there should be minimum 3 directors as the members of the audit committee, and out of these 3, at least 2/3 of them should be the independent directors and the rest of them can be other directors. So 2/3 means the majority should be of the independent directors in the audit committee. So minimum requirement is of 3. Out of 3 we have the requirement to keep 2/3 as independent and 1/3 as other directors. So 2/3 is forming the majority. So let's see which answer is correct. तो मिनिमम यहाँ पर देखिए तो 3, 4, 2, 5, तो ये तीनों ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली आपके गलत हो गए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. इसमें वैसे भी मेंशन किया हुआ है 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम, विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी, विच इज़ ऑब्वियसली 2/3 होने चाहिए एटलीस्ट. ओके, सो दिस वॉज ऑल्सो अ ईजी क्वेश्चन. क्वेश्चन इन 72 का आंसर हो गया आपका ए. Let's move on to the next question, which is question number 73. ABC Limited, a public limited company, is one of the top 1000 listed entities. So this is a listed public company, and this is one of those top 1000 listed entities. Okay, now this listed entity की जो classification है top 1000 वाली, this is on the basis of market capitalization. ऐसी की जाती है. आपने audit committee and corporate governance chapter के अंदर ये पढ़ा होगा. Now the board of directors of ABC Limited does not comprise of any women director. कोई भी women director नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में. द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हु इज सर्टिफाइंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज पर सेबी रेगुलेशंस हैज टू असरटेन दैट. तो अगर आपको पता होगा कि अगर कोई भी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ के अंदर होते हैं तो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट दैट एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर शुड बी देयर ऑन दी बोर्ड. बट यहाँ पर कह रहे हैं देयर इज़ नो वुमेन डायरेक्टर, सो दिस इज़ इनकरेक्ट. सो इसका मतलब हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर. तो यहाँ पर 2 लिखा है, तो दिस इज़ इनकरेक्ट. एंड दैट वुमेन डायरेक्टर शुड बी एन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर. तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 वाली जो कंडीशन है, दिस इज़ करेक्ट. तो द करेक्ट आंसर विल बी बी. यहाँ पर 5 दिए थर्ड ऑप्शन में, विच इज़ इनकरेक्ट. फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है कि ज़रूरत ही नहीं थी, तो वो भी आपका गलत हो गया. सो द करेक्ट आंसर इज बी इन दिस केस. ओके, ये आपको कॉम्पोजिशन पता होगी तो इजीली आपने सॉल्व भी कर लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74. द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज शैल कंप्राइज ऑफ. सो इफ़ यू रिमेंबर, हमारे लिए जो ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला चैप्टर है उसके अंदर टॉप 2000 एंटिटीज़ के लिए इट इज़ मैंशनड दैट एटलीस्ट देयर शुड बी the directors should not be less than 6. बेसिकली एटलीस्ट 6 डायरेक्टर्स होने चाहिए, है ना, टॉप 2000 के लिए. बट यहाँ हमसे टॉप 100 पूछा है. टॉप 100 के लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट हाँ अगर कोई कंपनी टॉप 2000 में आ रही है तो ऑब्वियसली बात है वो टॉप 100 में भी आ रही होगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. ठीक है, वैसे बुक में स्पेसिफिकली टॉप 2000 के लिए लिमिट दे रखी है दैट इट शुड हैव एटलीस्ट 6 डायरेक्टर्स. बट ऑब्वियसली बात है अगर कोई टॉप 2000 कंपनीज़ के अंदर आ रहा है तो टॉप 100 के अंदर भी आ ही रहा होगा, या बेसिकली टॉप 100 नॉट टॉप 100 में भी आ रहा होगा. इट इज़ जस्ट लाइक कि टॉप 100 पर भी वो रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी.
ठीक है। सो आई शुड रादर से कि टॉप 2000 के लिए कोई लिमिट एप्लीकेबल है तो वो ऑब्वियस सी बात है टॉप 100 के लिए भी एप्लीकेबल होगी ही होगी, राइट। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी सी। वैसे कोई स्पेसिफिक टॉप 100 के लिए मुझे तो नहीं पता कि कोई रिक्वायरमेंट मैंशनड है, तो अगर इस चीज़ में आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है तो प्लीज़ शेयर इट विद मी एज वेल। ओके, सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी सी। Let's move on to the next question, question number 75. The board of directors of XYZ Limited, it is a public company, one of the top 2000 listed entities. So, okay, it is one of those top 2000 listed public companies. Now, they meet 4 times a year. तो यहाँ पर आपके पास मीटिंग की बात हो गई कि नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए ऑफ दी बोर्ड in case of a top 2000 entities. So top 2000 entities के केस में if I say, तो यहाँ पर हमसे बताया हुआ 4 बार मिल रहे हैं एंड व्हाट शुड बी द कोरम। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कोरम क्या होगा। कोरम की बात करें तो कोरम फॉर टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ होता है 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज़ हायर, बट देर इज़ अ रिक्वायरमेंट दैट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी देयर, राइट। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/3 1/3 1/3 सब में लिख रखा है। सो दिस मीन्स दिस क्राइटेरिया इज correctly given in all the options. Next criteria was 1/3 of the total strength or 3 directors. Let's see how many directors they have mentioned. 3 4 3 3. So यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट इज एट 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। तो हायर सब में दे रखा है, ये तीनों ठीक है। एंड देर इज रिक्वायरमेंट दैट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी देयर। तो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो दीज 2 ऑप्शंस आर ऑल्सो इनकरेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें कंसिडर करनी है कि सारे के सारे पॉइंट्स होने चाहिए एक पर्टिकुलर ऑप्शन में, तभी वो सही होगा। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप हो सकता था यहाँ पर क्लिक कर टिक कर देते डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर 4 डायरेक्टर्स लिखा हुआ है विच इज़ इनकरेक्ट। 3 या फिर 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो आप MCQs ईजिली सॉल्व कर पा रहे होंगे, right? Let's move on to the next question, which is question number 76. XYZ Limited, a public limited company engaged in the manufacturing of TMT bars. Messrs UV and Associates are the statutory auditors of XYZ Limited for the financial year 1920. Now the company is listed, तो listed public company का केस हो गया। So this is listed on the National Stock Exchange. CA Uddhav, the engagement partner, is considering the requirements in respect of Regulation 27 and Schedule 2 LODR for corporate governance compliance of XYZ Limited. Which of the following is correct in this regard? तो correct option हमें बताना है। तो let's see इसमें क्या दिया हुआ है। तो अगर आपको पता हो रेगुलेशन 27 और शेड्यूल 2, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसको क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है उस फॉर्मेट में जो बोर्ड ने स्पेसिफाई किया होता है, एंड दैट हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर, एंड इट हैज़ टू बी साइंड बाय द कंप्लायंस ऑफिसर और द CEO ऑफ द लिस्टेड एंटिटी विच एवर इज पॉसिबल, राइट। सो इन दिस केस दिस शुड हैव बीन डन। लेट्स सी विच ऑप्शन covers all these points which I just narrated. Let's check. XYZ Limited shall submit a quarterly compliance report on corporate governance in the format specified by board. तो पहली बात ठीक लिखी हुई है कि quarterly compliance report submit करनी पड़ेगी, and it has the format has to be as per the board, and this has to be submitted to NSE, the stock exchange, within 15 days from the close of the quarter. तो ये लाइन भी बिल्कुल ठीक लिख रखी है, ये भी ठीक लिख रखा है। The report shall be signed either by the compliance officer or the CEO. तो बिल्कुल सही पॉइंट दे रखा है, सारी चीज़ें इसमें सही हैं, तो बाकी सब चेक करने की ज़रूरत है। चलो देख लेते हैं, फिर गलती मार्क करेंगे कि उसमें गलत क्या दिया हुआ है। XYZ Limited shall submit a monthly compliance, तो यहाँ पर ये गलत हो गए, क्वार्टरली compliance होना चाहिए था। XYZ Limited shall submit a quarterly compliance report on corporate governance in the form as specified by the format specified by the board from time to NSE within 30 days. यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, फर्स्ट 2 पॉइंट सही थे, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, इसीलिए ये पॉइंट गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज XYZ Limited shall submit the annual compliance, एनुअल थोड़ी ना क्वार्टरली होती है, तो इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हो एक एक चीज़ को टिक करते जाना, जहाँ जहाँ पे आपको अगर आपको अच्छे से याद है वो प्रोविज़न वो पर्टिकुलर टॉपिक, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उसको पहले अपने दिमाग में फ्रेम करना, एंड देन यू कीप ऑन
जस्ट मार्किंग इट डाउन कि कौन सा पॉइंट उस पर्टिकुलर MCQ के ऑप्शन में सही है. जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया ऑप्शन A के अंदर कि ये वाला ठीक है, ये भी पॉइंट ठीक है, सारे सही हैं, उस बेसिस पर आई डिसाइडेड कि दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सिमिलरली इस क्वेश्चन में मैंने मार्क किया कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन ही गलत है, इसलिए पूरा MCQ पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली C वाले में फर्स्ट 2 पॉइंट्स पर करेक्ट, बट द थर्ड पॉइंट द मेंशन वाज इनकरेक्ट. सो इसी तरह से अगर आप MCQs को करोगे तो आपका टाइम भी सेव होगा एंड यू विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व इट करेक्टली. ठीक है. Let's move on to the next question. Question number 77. A report submitted by you after the audit of public sector unit is more likely to be finally reviewed by. So यहाँ पर आपके पास PSU का क्वेश्चन आ गया. PSU के केस में if you know कि फाइनली रिव्यू कौन करता है, तो यहाँ पर आपकी कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स रिव्यू करती है. लेकिन अगर ये केस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ना होकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होता तो यहाँ पर आपका PAC दैट इज़ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी चेक कर रही होती, रिव्यू कर रही होती. तो सिंस दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. राइट. नेक्स्ट, यू हैव बीन गिवन एन असाइनमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ IT डिपार्टमेंट ऑफ PSU. तो ये भी PSU से रिलेटेड है. अ चेकलिस्ट वॉज हैंडेड ओवर टू यू which contained many questions such as separate user names and passwords assigned to the individual users. क्या separate user names passwords assign हुए हैं? Are periodical changes of passwords ensured? Are external offsite data backups maintained at a place outside the premises? So these are what? These are related to somewhere related to compliances कि क्या ऐसी चीज़ों का compliance हुआ है या नहीं. When I talk about the comprehensive audit, तो comprehensive audit के अंदर आप generally देखते हो कि क्या जो objectives हैं उनको fulfill किया गया है या नहीं. जो objectives already established हैं उसको किस तरीके से achieve किया जा रहा है, fulfill किया जा रहा है, क्या जो हमने money spend की है क्या उसकी value हम obtain कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे. बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस. राइट. सेकेंड ऑप्शन इज प्रोप्राइटी. प्रोप्राइटी की बात करें तो यहाँ पर आप मैनेजमेंट डिसीजंस को एग्जामिन करते हो, जैसे कि सेल्स के अंदर, परचेजेस के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर. वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है. राइट. नेक्स्ट इज कंप्लाइंस. तो कंप्लाइंस तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप कंप्लाइंसेस ही चेक कर रहे हो कि जो भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, अग्रीमेंट्स वगैरह हो रहे हैं उनको कंप्लाई किया जा रहा है. तो बेसिकली कंप्लाइंसेस चेक कर रहे हैं जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं. इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द फाइनेंशियल ऑडिट, तो फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर तो बेसिकली काम होता है कि आपको कोई ना कोई कंक्लूजन पर आना है, कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है, जिससे कि जो यूज़र्स हैं उनका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाए. तो वो चीज़ तो यहाँ पर इंश्योर नहीं हो रही. इस चीज़ की चेकलिस्ट नहीं है. चेकलिस्ट तो स्पेसिफिकली बता रही है कि क्या इन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है, उसको कंप्लायंस किया जा रहा है या नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज़ वेरी सिंपल. कंप्लायंस ऑडिट शुड बी द आंसर. दैट इज ऑप्शन नंबर C. राइट. Let's move on to the next question. 79. Mr. P, partner of XYZ Limited, is a statutory auditor of PQR Limited since 1st April 2014. Mr. P also provides services of tax audit and represents before the tax authorities for various litigation matters. PQR Limited now wishes to avail the internal audit and bookkeeping services from Mr. P. तो Mr. P का वो already tax auditor है, वो already not statutory auditor, वो ऑलरेडी टैक्स ऑडिट कर रहा है, वो उसको इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करता है. हाँ, और वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी है, क्योंकि PQR लिमिटेड है ना, कंपनी है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी है, या बेसिकली ही रिप्रेजेंट्स द क्लाइंट. तो ये सारे काम कर रहा है. वो कह रहा है कि मुझे ना इंटरनल ऑडिट और बुक कीपिंग करने का भी मन है, मुझे ये भी चाहिए मिस्टर P से. Mr. P चाहता है कि I want to provide all these services also to PQR Limited. Now Mr. P is required to give his views for whether he can render such services to PQR Limited in addition to the existing services. मतलब in addition मतलब ये तो वो प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं कि वो ये काम छोड़ रहा है और उसके अलावा now alternatively he is going to provide these services of internal audit or bookkeeping. No, he is saying apart from the services he is already providing to PQR Limited, he wants to provide these two services also. What do you think? Can he provide? So no. As per section 144, if you know, there are some services, certain services which the auditor cannot render to the organization where he is the auditor. So definitely in this case these two services are one of those जो section 144 की लिस्ट के अंदर mentioned है. तो definitely the auditor cannot provide these services. So can provide तो आपकी automatically incorrect हो गया option. So the correct answer is D. I hope you are clear with this. Next move on to the next question. That is the last question. बहुत जल्दी हो गए. MCQs काफ़ी छोटे थे, काफ़ी डायरेक्ट थे. Now, Gamma Limited is a renowned limited liability partnership firm specialized in rendering services related to statutory auditors. So, एक LLP है जो stat audits कर रही है, tax audits कर रही है, consultancy provide कर रही है, relating to direct and indirect taxes etc.
Gamma Limited is appointed as the statutory auditor for the financial year ended 31st March 2020 of Beta Limited, now a listed company. Alpha Limited chartered accountants were retiring auditors of Beta Limited. So Alpha Limited retire हो रहे हैं, Alpha की जगह अब कौन आ रहा है, Gamma Limited आ रही है. Now you are required to suggest Gamma Limited is required to carry out which audit procedures with the retiring auditor. Retiring auditor के साथ आपकी क्या responsibility बनती है, तो definitely whenever the auditor retires and a new auditor enters or gets appointed, the new auditor needs to take the NOC from the previous or the retiring auditor before starting the audit, right? So previous communication वाली चीज़ होती है. So definitely before the start of the audit he has to obtain the NOC from the previous auditor, that is the Alpha Limited. So the audit procedure would be to obtain NOC from Alpha Limited before the start of audit. बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. To start the audit and then obtain, no. Before the start of audit you have to take the NOC. तो ये गलत हो गया. No objection certificate is required. No objection certificate is not required to be obtained. No, it is required. No NOC has to be obtained from Beta Limited. तो ये भी आपकी गलत चीज़ हो गई. तो आपको Beta Limited से नहीं लेना होता, प्रीवियस ऑडिटर से लेना होता है. ठीक है. सो यहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए. NOC has to be obtained from the retiring auditor, right? So this was all about this case. This was all about this particular MCQ, and in fact the whole MCQ series. So we have covered 80 MCQs till date. Come on, we have covered a lot of them. Only 20 are left. So please, if you are new here and you have not watched the previous videos, please check out them. They are conceptually explained and in detailed form. So definitely you are going to get help. So yeah, thanks for watching this video. This is all for today, guys. Thank you so much. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, and of course, don't forget to give a big thumbs up to this video, share it with your friends, and subscribe to the channel for more such videos. Right? So bye bye.